Now who has told this answer? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का किसने कहा था? आयशा? यस मैम। अच्छा आयशा, आप किसी और का नाम सजेस्ट करो जो बताएगा। We will play passing the parcel game. सारा। पता है ना सर? सारा। ओके सारा। सारा Yes, is there? ma'am. हाँ जी बताइए। आयशा ने सारा को नॉमिनेट 146. किया है। 146, 146. 73. 73। 100 by 146. चेक कीजिए आप बराबर बोल रहे क्या नहीं। 46। ओके सारा, you can nominate somebody else. Ma'am, from boys, Aman. Aman है ना? अमन? एमन, रोल नंबर 30 शायद से। Yes, ma'am. Is there? Is he there? No, he has not joined. See from the participant list ना, और participant list से कहिएगा। ये सारा पार्टिसिपेंट लिस्ट देख के आप बताइए। मैम सादिया को ले लो फिर। सादिया, सादिया है क्या? Yes, ma'am. हाँ जी सादिया, कैरी ऑन। Molecular weight 136 and equivalent weight is 68. So multiplication factor will be 100 upon 136. 100 upon 136. Great. Sadia, you can give somebody else name. Pass on the parcel. अरे क्या हो रहा है? Aji, Sadia, you can ask somebody else. Teacher Jaldi from boys, Ayan. हाँ, Ayan. Ayan, are you there? Ayan Sheikh. Ayan Sheikh. Anybody else? Hasiba. हसीबा? यस मैम। हाँ जी बोलिए। CaCl2 का। मैम मॉलिक्यूलर वेट इज 111, इक्विवेलेंट वेट इज 55.5 and multiplication factor is 100 by 111. Okay, thank you so much for all. Yes, you can nominate someone else. Yes. Nominate somebody else. नाम मैम साकिब। साकिब। साकिब, are you there? Yes, ma'am. साकिब, हाँ जी बोलिए साकिब। Molecular weight 120. 120. Yes. Equivalent weight 60. And multiplication factor will be 100 upon 60. 100 upon 120. चलो किसी और का नाम बताइए। Wait a minute. हाँ जी। Hamad Khan from boys. अहमद खान। Hamad. इधर है अहमद। Are you there? Ahmad Khan, roll number 22. I will mark absent. Na? Those people are not responding. Ahmad Khan, चलो absent. 22 absent. I am noting down. कोई और किसी का और का नाम लो साकिब। Ayush Thakur. Ayush Thakur. आयुष ठाकुर, are you there? आयुष ठाकुर? Yes, ma'am. हाँ जी बोलिए। Molecular weight 95.
47.5. What? 47. 0.5 and multiplication 100/95. अच्छा, किसी और को नॉमिनेट करो। आयुष। कितने बोले थे? आदित्य, हाँ जी, आदित्य, यू सेड राइट? yes Hello, ma'am. जी, आदित्य, Molecular weight 148. 1 minute. Molecular weight is 148. Equivalent weight 74. 74. 100/148. 100/148. Okay. Tell me for nominate for somebody else faster. Eman. Eman. Eman, are you there? सब एमान तो ही क्यों पढ़ रहे? Where is he? एमान, Yes, ma'am. हाँ जी, you are there right? बताइए मुझे, कंप्लीट करो ये सेंटेंस टेबल में। CaCO3 ये तो आता है, इजी है। एमान, एक बोलिए। मिनट। सच बोलो जल्दी पापा, टाइम नहीं है। मैम 100 क्या 100? molecular weight हाँ, 100 इक्वल वेट and equivalent weight क्या? 50 50 और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 150 100/50 क्यों बच्चा? Molecular weight of CaCO3 upon molecular weight of HPS. अगर HPS मेरा CaCO3 है तो 100/100 ही हुआ ना? Okay, ma'am. ठीक है? Okay. Now tell me somebody else को nominate करो to tell the answer. फटाफट। किसका भी मैम? हाँ, किसी का भी नाम बोलो। जल्दी। अयान, इतना क्या सोच रहे हो? किसी का भी नाम लो जल्दी, जो बताएगा आंसर आगे का। सारा। सारा का हो गया। टेक अरबाज, आपने हैंड रेस किया है, वुड यू लाइक Yes, टू? ma'am. हाँ ठीक। Yeah, अरबाज, ma'am, may I continue? ठीक है, अभी अरबाज को बोलते हैं, बाकी अभी और भी है। अरबाज, यू कैरी ऑन विद दिस Yeah, ma'am. MgCO3 Molecular weight is 84. 84. Equivalent weight is 42. Multiplication is 100/84. Okay, fine. So this is what we have done with the finding out the molecular weight, equant weight, and the multiplication factor, where all the salts were in the +2 state. Okay, where the valency was +2 and we have to convert into +2 only. So we consider the multiplication factor as multiplication factor we consider the molecular weight. So I hope this is clear to you how to calculate. Now going ahead, we have a different type of cations now, the salts which are there, which can be monovalent or which can be trivalent also. So
starting with this. Who will come? Farhan. Yes, ma'am. Haji. Can we start with this? Can you tell the molecular weight of bicarbonate, HCO3? Ma'am, H is 1 and CO3 is हाँ, वो 7. कैलकुलेट करो ना बेटा, कैलकुलेट करके वो फाइनल काउंट बता दो. अच्छा, सभी को टाइम देती हूँ, आप कैलकुलेट कीजिएगा, फिर मैं बुलाती हूँ एक एक के. Yes, ma'am. 1 minute. हाँ. Zero 1. जी. How much is it? हेलो. कितना है HCO3 का? फरहान. 101. 101. 101. Is it? ठीक से Yes, करो ma'am. कैलकुलेट. ठीक से करो कैलकुलेट, देखिएगा. No, ma'am. No, it is not 101. देखो ना, ऑक्सीजन 16 सर into बोलो 3, मैम, बोलो. कार्बन 12. हाँ, बोलिए बोलिए. 61. 61. Yes. बराबर. हाँ, 61. और उसका इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा? 30.5. क्या हम कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट, कैसे निकालते हैं? Molecular weight half. हाँ, It's the half molecular of weight molecular divided by 2. Is it always half of molecular weight? No, ma'am. हाँ, तो how do we find out molecular weight divided by the valency? बराबर है. तो Yes, ma'am. हाँ, अब तक जो हमने किए थे सॉल्ट्स जिसमें हमारी वैलेंसी 2 थी, इसके लिए वो हाफ हो रहा था. अब है HCO3. HCO3 में what is the valency of hydrogen? 1. 1. So it is a monovalent compound. तो monovalent compound मतलब वैलेंसी से डिवाइड करेंगे, 61 डिवाइड बाय 1 तो कितना होगा? 61. 61. ठीक है, तो 61 हुआ ये. तो 61 अपना इसका इक्वल वेट हुआ. अब उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमको करना है. तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा? 100 by 61. 100 by 122. यस, 100 बाय. अब क्या देखो, हमने इक्विवेलेंट वेट निकाला उसका 61, राइट. यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर वेट है 61, लेकिन ये जो सॉल्ट है ये मोनोवैलेंट कंपाउंड है. हमें किसमें कन्वर्ट करना है उसको? By. बाईवैलेंट में. तो बाईवैलेंट कंपाउंड में करना है तो इंटू 2 करोगे तो ये होगा 61 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 122. ठीक है, तो ऐसे ये जो सारे अलग सॉल्ट्स रहेंगे जिसमें वैलेंसी जो है इसकी 2 वैलेंसी नहीं है, तो इन दैट केस what we have to do in order to convert into +2 we have to multiply by 2. ठीक है. now similarly अभी इसका निकालिएगा, Al2SO4 थ्राइस का मॉलिक्यूलर वेट निकालिएगा. 342. 42. करेक्ट. हाँ, 342 आया. ठीक है, ये हुआ इसका मॉलिक्यूलर वेट. अब एल्यूमिनियम का हमें वैलेंसी निकालनी है इस कंपाउंड की. 57. 3 में कैसे एल्यूमिनियम की 3 कैसे है. आया? हाँ, 57 कैसे आया बताएंगे? 6 से डिवाइड किया. डिवाइडेड वेरी 3. गुड. हाँ, एक एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है तो डिवाइड बाय 6 होगा.
तो डिवाइड बाय 6 होगा तो हमें क्या मिलेगा 57। अभी यहाँ पे एक विंडो आ रहा, एक मिनट, विंडो आ रही है ना, इस वजह से टाइप नहीं कर पा रही हूँ मैं। हाँ जी, इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा इसका अभी 57. 57। हाँ 57। अब इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा? कोई बता सकता है अभी? मल्टीप्लिकेशन 100. फैक्टर 100 डिवाइडेड बाय 6. No. No, ma'am. 114. 114. 114 342. कैसे, कैसे आया 114? By 57 into 2. हाँ वेरी गुड, 57। ये जो आपका इक्विवेलेंट वेट वो हम ले रहे हैं इंटू 2 करोगे बाइवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए, तो कितना हुआ 114. हाँ 114। ओके, तो इस तरह से हमें ऐसे कुछ मोनोवैलेंट कंपाउंड्स है या ट्राईवैलेंट कंपाउंड है तो उनको वैलेंसी से डिवाइड करेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे उसको बाइवेलेंट कन्वर्ट करने के लिए। तो इसी तरह से नेक्स्ट का बताओ FeSO4 277. 278. 77. 8 because देखो ठीक से देखिए 277 है। 277. Yes, ma'am. 277. Yes, ma'am. 277. नहीं 278 है, चेक करो वापस टोटलिंग में। मैम पॉइंट में आएगा वो तो उसको 278 कर सकते. 139.5 आएगा ना मैम? अरे मॉलिक्यूलर वेट बताओ ना मुझे। 277 है, 277. 270 सभी को 277. 277 आ रहा Yes, ma'am. 277. है। एक कहाँ पे आ रहा है? 278 आना चाहिए। मैम पॉइंट में आएगा ना तो फिर पॉइंट में क्यों आएगा? 277 पॉइंट. पॉइंट में पॉइंट क्यों में क्यों आएगा? आएगा? हाँ पॉइंट में क्यों पॉइंट आएगा? में नहीं आएगा मैम। हाँ क्योंकि आप तो उसका एटॉमिक वेट से जो है आयन को 56 लिया आपने, Fe56, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 into 4 प्लस 7 ऑफ H2O। देखो जरा ठीक से कैलकुलेट करके। 278. आया ना 278? कहाँ पे मिस्टेक हो गई थी? बेटा बताओ कहाँ पे मिस्टेक हो रही थी ताकि सब बाकी सब। मैम 1 पॉइंट की मिस्टेक. हाँ वही 1 पॉइंट की ही तो मिस्टेक हो रही थी, तो 278। ठीक है, तो 278 का अभी इक्विवेलेंट वेट निकालोगे 139. 139। Fe+2 है तो इसमें आप डिवाइड कर रहे हो 2 से, 139 हुआ और इसको 100 बाय 278. 278 क्योंकि ये बाइवेलेंट कंपाउंड है। हाइड्रोजन 1. 1, 1. इक्विवेलेंट वेट 1. 1. 1 1, तो इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या हुआ 100 upon 100 1. upon 2. 2. 100/2, ये 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है वेरी गुड। अभी लास्ट वन NaAlO2 82. 82 82. सेम रहेगा, एंड सोडियम +1 है यहाँ पे, तो 82 100 डिवाइडेड बाय 164. 164. हाँ 82 into 2 होगा। सॉरी क्या लिखा, 80 100 डिवाइडेड बाय 82। टाइप नहीं
ठीक है, यहाँ पे आप मैं आगे की स्लाइड दिखाती हूँ जहाँ पे मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा है. So this is what 100 upon 164. So I hope all of you have got how to find out the molecular weight, how to find out the equivalent weight, and how to calculate the multiplication factor. सभी को समझा? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Okay. Yes, ma'am. So now we will start doing the calculation to find out the hardness of water sample. तो हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल्स है जो हमको याद रखने हैं, राइट? तो ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं. पहली बात तो फर्स्ट रूल क्या है? सबस्टेंसेस व्हिच डू नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स हार्डनेस, मतलब ये जो से हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव KCl, NaCl, सिलिका, सोडियम सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम सल्फेट एक्सेट्रा. तो बेसिकली जहाँ पे कैल्शियम, मैग्नीशियम और Fe आयंस अलोंग विद द कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स या क्लोराइड और सल्फेट नहीं रहते हैं, ये कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं हार्डनेस के लिए, और इसके लिए हम लिखते हैं इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू हार्डनेस, और उसको हम इग्नोर कर सकते हैं. Second point is convert all substances causing hardness into CaCO3 equivalent. ये हमने भी पढ़ा कि CaCO3 को हम स्टैंडर्ड रखते हैं, इसके वजह से सारे जो सॉल्ट्स होते हैं हम CaCO3 के लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के लिए हमने जो है फॉर्मूला भी हमने अभी डिग्री ऑफ हार्डनेस का देखा है. Third point is that cations such as calcium ions, Mg+2 and Fe ions are present. तो अगर हमारे न्यूमेरिकल्स में खाली कटायंस मेंशन किया होगा, दैट इज Ca+2, Mg+2 या Fe+2, तब इन सारे आयंस का हमें परमानेंट हार्डनेस ही कंसिडर करना है, दैट इट इज कंसिडर्ड टू बी कंट्रीब्यूटिंग फॉर परमानेंट हार्डनेस ओनली. ठीक है? एंड ये एटॉमिक वेट्स तो हमने ऑलरेडी लिखा था जब हमको मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना था. So now we will proceed to start doing the problems based on hardness. This question is asked for around. हाँ जी. ये जो लिख के आ रहा है उसको वो हट नहीं सकता क्या? अरे वो नहीं हट रहा है, वो धीरे धीरे चल जाता है, चला जाता है एक्चुअली, पर वो नहीं जा रहा है. डिस्टर्ब कर रहा है. हाँ चलो, अभी शायद हाँ भी गया. आपने उसको बोला वो चला गया. देखो आ गया. गया ना, आ गया. ठीक है, शायद पता नहीं, मैं माउस वहां पे लेके जाती तो आ जाता. ओके, नाउ सी ऑन द स्क्रीन, आपके सामने पहला न्यूमेरिकल दिख रहा है. ये 3 से 4 मार्क के लिए पूछा जाएगा एग्जाम के लिए. UT1 में आपका जो सिलेबस, ये सारा सिलेबस होगा अलोंग विद द सिलेबस जो है आपके लिए UT1 के लिए, दैट इज EDTA के न्यूमेरिकल्स तक. तो हमें थोड़ा और सिलेबस कंप्लीट करना होगा एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेके. ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन, आपके सामने दिख रहा है, आप आपके नोटबुक्स में लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, इस तरह से टेबल बनाइए. सॉल्ट, क्वांटिटी, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, इक्विवेलेंट, CaCO3 इक्विवेलेंट और टाइप्स ऑफ हार्डनेस. और उसके बाद ये जो क्वेश्चन लिखा है आपको वो टेबल में उसकी क्वांटिटी लिखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बनाएंगे, फिर CaCO3 इक्विवेलेंट लिखेंगे कितना आ रहा है, और टाइप ऑफ हार्डनेस. आपको बताना है कि कौन सा हार्डनेस है, टेम्पररी हार्डनेस है या परमानेंट हार्डनेस है. तो उसके बाद हम ऐड करेंगे, मैं धीरे धीरे समझाती हूँ. आपका इतना बना के हो गया? अगर हो गया है आपके नोटबुक में कि आपने क्वेश्चन लिखा है, टेबल बनाया है, और जो भी स्लाइड पे दिख रहा है वो कॉपी करके आप रेडी हो, देन वी विल स्टार्ट डूइंग सॉल्विंग द न्यूमेरिकल. ठीक है, जैसे आपका हो जाता है चैट बॉक्स में डन करके लिखिए. आई विल वेट फॉर दैट. मैम हाँ, मैम अभी वो एक्सपेरिमेंट कौन से सबमिट करने के? अभी एक ही एक्सपेरिमेंट सबमिट करना है pH मीटर का, और मैंने Okay, डेट ma'am. एग्जाम है इसके लिए मैंने
जो डेट दी है सबमिशन की वो अगले फ्राइडे की दी है, ताकि वो लेट सबमिशन ना आए। लेकिन अगर आपका हो चुका है तो आप अपलोड कर सकते हैं। यूएचवी के भी 2 असाइनमेंट्स मैंने डाले हैं, उसका भी डेट मैंने नेक्स्ट फ्राइडे का दिया है। अगर आपका इन केस कंप्लीट नहीं है तो भी आपको 1 वीक का टाइम दिया है मैंने आगे का। उसके बाद मैं उसका असेसमेंट तो पहले अगर हो जाता है आपका अपलोड तो पहले भी कर दूंगी, असेसमेंट का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका अगर हो चुका है आपने तो प्लीज ये कर दीजिएगा, मैम अपलोड कर कैसे दीजिए। ओके मैम। कैसे क्लासरूम में वो हाँ, क्लासरूम में जाके वो असाइनमेंट पे क्लिक कीजिए ना, फिर नीचे अपलोड करके आता है। क्योंकि मैं जो यूज कर रही हूँ ना, मैं टीचर्स प्लेटफॉर्म यूज कर रही हूँ। स्टूडेंट के यहाँ पे कैसे दिखता है वो मुझे ज्यादा उससे आइडिया नहीं है कि स्टूडेंट के यहाँ पे क्लास आप ज्वाइन कैसे होना है, वो हो ही नहीं रहा। क्लासरूम के लिए मैंने कहा ना, जीमेल अकाउंट में ऐड अनदर अकाउंट में डालिएगा। ऐड अनदर अकाउंट में फिर जो मैंने यूजर नेम दिया आपको, आपका रोल नंबर जो यूजर आईडी है वो डालेंगे, और पासवर्ड जो मैंने स्क्रीनशॉट में भेजा है। उसके बाद आप लॉग इन करोगे, फिर आपके वहां पे जो इनबॉक्स रहेगा, इनबॉक्स में इनविटेशन आया होगा मेरी तरफ, गूगल की तरफ से, क्लासरूम की तरफ से, कि आपको ज्वाइन करना है क्लासरूम। फिर वहां से आप क्लिक करोगे तो ज्वाइन हो जाओगे। तो खाली आई थिंक सो 38 स्टूडेंट्स ही ज्वाइन हुए हैं आउट ऑफ 52, और मैंने असाइनमेंट्स भी ऑलरेडी पेश किए हैं। तो जिसको भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है ज्वाइनिंग में, प्लीज आपके फ्रेंड्स से कांटेक्ट करो और ज्वाइन हो जाओ। मैं आपके पीछे पड़ने वाली नहीं हूँ। अगर आप मैम ज्वाइन नहीं करते हो तो आपका असाइनमेंट अपडेट नहीं होगा, अपलोड नहीं होगा। हाँ जी मैम गूगल बोलिए। क्लासरूम का अलग से एप्लीकेशन है क्या? हाँ, आप मोबाइल में भी गूगल क्लासरूम प्ले स्टोर से ना गूगल क्लासरूम डाउनलोड करके रख सकते हो, ताकि मोबाइल से भी आप एक्सेस कर लो। अगर आप पीसी से एक्सेस करो तो मोबाइल से भी एक्सेस होता है। ओके मैम, थैंक यू। लेकिन पहले आपको जीमेल से लॉग इन करना होगा, जीमेल अकाउंट से। ओके ओके, चलो हो गया। ओके, नाउ स्टार्ट विथ, 25 चलो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बताओ मुझे कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। 100 by 1 100 अपॉन 162। upon 162। हाँ, टाइप ही नहीं हो रहा है। हाँ, ठीक है, 100/162 प्लीज आपके नोटबुक में लिखा होगा आपने। तो उसके बाद क्या लिखा है, CaCO3 इक्विवेलेंट। ये बताओ कैसे फाइंड आउट करेंगे CaCO3 इक्विवेलेंट। 40.5 into 100/162। 4.5 नहीं, आंसर इज 40 25 45 हाँ 45 हाँ 40.5 है बराबर 40.5 इंटू into 100 upon upon 162 162। 25 हाँ, तो कितना आंसर आया उसका? उसका आप डायरेक्टली वैल्यू भी लिख सकते हो, 25 25। ठीक है, और कौन सा हार्डनेस है उसका? टेम्पररी। यस, वेरी गुड, टेम्पररी हार्डनेस। तो दिस इज कॉल्ड एज द टेम्पररी हार्डनेस। ये आपने कंप्लीट किया। उसी तरह से सेकंड के लिए जाइए, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। 146। मैंने नम लॉक किया है क्या मैंने? ओके, पागल जैसे मैंने नम लॉक किया था इससे नंबर नहीं आ रहा था। 100/146। 6 हाँ, चलो ऊपर का बताइए, मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। 100 क्या था? कैल्शियम बाइकार्बोनेट 162। 162 हाँ 162, और इसका 25 था ना यस मैम। हार्डनेस, और ये टेम्पररी। ठीक है, और इसका कितना आ रहा है? 29.1। देखो किसको नहीं समझ में आता है, तो मास ऑफ HPS इनटू molecular weight of CaCO3 अपॉन molecular weight of HPS which is equal to, कितना आया इसका? 19.93 तो राउंड अप कर सकते हैं हम इसको। तो 20 20 पकड़, 20 कौन सा हार्डनेस है ये? टेम्पररी
टेम्पररी. हाँ, नेक्स्ट वन. 100 अपॉन 1 CaCl2 1 का 1 तो ये कितना हुआ? 11.1 into 100 upon 111. 10. 10. Which hardness? Permanent. Permanent. Okay. Next, MgCl2. 100 upon 95. 100 upon 95. 95. Right. और ये कितना हुआ फिर? CaCO3 equivalent 17. 17. और कितना हो, कौन सा हार्डनेस है ये? Permanent. परमानेंट. आप पूरा लिख सकते हो, परमानेंट लिखो, मैं अभी यहाँ पे टाइपिंग में प्रॉब्लम है. ओके. NaCl. मैम ये हार्डनेस में नहीं है ना? हाँ नहीं है, तो क्या लिखोगे आप? डज नॉट कंट्रीब्यूट टू हार्डनेस. Does not contribute to hardness. Same, carbon dioxide. 100 by 44. Does not contribute. Does not contribute to Not hardness. डज नॉट कंट्रीब्यूट. देखिए, मतलब सारे प्रॉब्लम में डज नॉट कंट्रीब्यूट नहीं आता है, कुछ ना कुछ तो आता ही है करने के लिए. तो ये डज नॉट कंट्रीब्यूट टू हार्डनेस. तो ये भी सेम, आप उसको कॉपी करके या वहां पे भी सेम लिखोगे. DNC. अभी मैं फिलहाल शॉर्टकट के लिए DNC लिख रही हूँ, एग्जाम में मत लिखना, ठीक है? तो अभी बताओ मुझे, अभी हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है? कैलकुलेट द टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल. तो अभी हमने क्लासिफाई किया उसको, टेम्पररी कौन सा है, परमानेंट कौन सा है. अब मुझे बताइए कितना हुआ टेम्पररी हार्डनेस, मुझे कितना मिला कैलकुलेट करके? आप टोटल करोगे, जो भी टेम्पररी लिखा है उसको कैलकुलेट करोगे, टोटल करोगे, कितना हुआ? 20 प्लस 35. हाँ जी 20 plus 25. 45. 20 प्लस 25 45. 45. ओके राइट. तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ये हमारा टेम्पररी हार्डनेस हो गया, दैट इज 25 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 45. और हमारा परमानेंट हार्डनेस कितना हुआ? 27. 27. 27. 27. CaCl2 और MgCl2 को ये जो परमानेंट हार्डनेस है वो 27 हुआ. और हमारा टोटल हार्डनेस कितना हुआ? 72. 72. ओके. तो आपको अप्रॉक्स दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे मैंने राउंड अप नहीं किया था इसलिए 19.9 है. तो आसपास आपका उतना ही आंसर आएगा, ठीक है? तो इस तरह से आपको आगे लिखना है कि टेम्पररी हार्डनेस में कौन से सॉल्ट्स आते हैं. कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो उसके वैल्यूज लिखने हैं. 25 प्लस 20 हमने राउंड अप लिया था, 20 लिखेंगे इज इक्वल टू 45. फिर परमानेंट हार्डनेस इज इक्वल टू CaCl2 प्लस MgCl2 करेंगे, दैट इज 10 प्लस 16.65 इट इज इक्वल टू 26.65. ये राउंड अप कर सकते हैं तो 27. तो टोटल करेंगे आप 45 प्लस 27. तो ये हुआ हमारा टोटल हार्डनेस. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू हाउ टू गो फॉर द हार्डनेस न्यूमेरिकल? सबका लिख के हो गया है? कैन वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? Ma'am. जी Yes, ma'am. यस. ओके. सो नाउ टेक दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी डाउन द क्वेश्चन एंड सॉल्व अकॉर्डिंगली. होने के बाद बताइए मुझे, तब तक मैं थोड़ा अटेंडेंस ले लेती हूँ. सॉल्व कीजिए आपके नोटबुक में.
Give your attendance. Roll number 1, Present, ma'am. roll number 2. 2 is absent. Mehak. 3. Roll number 3. Rinki. Haji. Present. Roll number 4. 4. Roll number 4 is absent. Roll number 5. Present, ma'am. 5. Present. 6. 6. 6 is absent. 7. Present, ma'am. Present. 8. Roll number 8. Absent. 9. 9. Present, ma'am. Present. 10. Present, ma'am. 10. Present. 11. Present. 11. 11 is absent. Akhil. 13. Sorry, 12. Present, ma'am. Present. 13. Present. Present.